کبھی کسی نے آپ سے بات کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ تم بدل گئے ہو اور بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن آپ کے دماغ میں وہی جملہ رات تک بلکہ اگلے کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے۔ کسی نے آپ سے ٹون چینج کر کے بات کی، کسی نے آپ کی تعریف نہیں کی اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شاید آپ میں ہی کوئی کمی ہے۔ کسی نے رپلائی تھوڑا لیٹ کر دیا تو دل نے فوراً فیصلہ سنا دیا کہ وہ بندہ مجھ سے ناراض ہے اسی لیے رپلائی نہیں کرتا۔ کسی نے ایک مسٹیک پوائنٹ آؤٹ کیا آپ کا اور آپ نے اپنی پوری پرسنالٹی کو ہی جج کر دیا کہ میں تو ایک ناکام انسان ہوں اور اس نے ایسا کیوں کہا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں ہرٹ نہیں کرتی، بلکہ ان باتوں کا مطلب جو کہ خود سے وہ جنریٹ کرتے ہیں وہ ہرٹ کرتی ہیں، اور پھر صرف ایک کرٹیسزم، ایک تنقید اور پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ صرف ایک ریجیکشن آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بالکل ہلا دیتی ہے۔ کسی کا ایک اوپینین آپ کی اپنی ویلیو پر آپ کو شک پیدا کر کے دے دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہر بات دل پر اتنی کیوں گہری لگتی ہے؟ کیا لوگ واقعی ہمیں اتنا جج کرتے ہیں، یا ہم دوسروں کے ہر لفظ کو اپنی ورتھ، اپنی عزت نفس کا فیصلہ بنا لیتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ کیوں کچھ لوگ ہر بات کو پرسنلی لے لیتے ہیں، اور کیوں ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو ایموشنلی سٹرونگ ہوتے ہیں، اور ایموشنلی سٹرونگ سائیکولوجیکلی ریزیلینٹ بننے کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں۔ تو جڑے رہنا میرے ساتھ۔ دوستو، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے۔ میں ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں، ماہر نفسیات ہوں، اور ہم طرح طرح کے ٹاپکس پہ ویڈیو بناتے ہیں، اور جو ٹاپک کہ ہر بات دل پہ لگتی ہے، چھوٹی بات پہ پریشر آنا، چھوٹی بات پہ گھبرا جانا، اس پہ کافی ویورز نے ہمیں ڈیمانڈ کی تھی، ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا، اور لوگوں نے کہا کہ ہر بات دل پر لگنا، اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر کوئی سوال کمنٹ ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ سب سے پہلے ایک مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی کو دور کرتے ہیں کہ ہر بات دل پر لگانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت ایموشنل انسان ہیں، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کمزور ہیں، آپ بہت زیادہ ویک ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے الفاظ، ان کے بات کرنے کے ٹون اور بیہیویئر کو اپنی عزت نفس، اپنی سیلف ورتھ کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ کسی نے صرف اتنا کرٹیسزم کیا تو لگتا ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ کسی نے آپ کو رپلائی نہیں دیا تو لگتا ہے کہ میں اس کے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہوں۔ یعنی کہ ایونٹ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس ایونٹ کا مطلب ہم بہت بڑا بنا لیتے ہیں، اور یہیں سے جذباتی پین، ایموشنل پین شروع ہوتا ہے۔ لیکن اصل درد بات نہیں دیتی، تو پھر اصل درد کیا چیز دیتی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک سمپل فارمولا دیتا ہوں کہ پہلے کوئی ایونٹ رہتا ہے، یعنی کہ کوئی آپ کو بات کرتا ہے، آپ کے دماغ میں اس کا مطلب آتا ہے، آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچوں میں پرانے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ مطلب اس کو بھی ہم آسانی سے سمجھتے ہیں کہ ایونٹ ہو گیا کہ ایک دوست نے رپلائی نہیں کیا، اس کا مطلب آپ اپنے دماغ میں جو نکالتے ہیں کہ یار وہ مجھے اگنور کر رہا ہے۔ آپ کے دماغ میں پرانا زخم جو پھر ہرا ہو جائے، شاید میں امپورٹنٹ انسان نہیں ہوں، اور ریئیکشن اداسی، لو موڈ، اوور تھنکنگ، گھبراہٹ یا غصہ۔ یہاں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکثر درد وہ ایونٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس ایونٹ کو دیا گیا میننگ دیتا ہے۔ آپ کو ایونٹ کا پتہ چل چکا ہے نا، تو وہ ایونٹ کی وجہ سے جو آپ کے دماغ میں میننگ اور پرانے زخم ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں، تو وہ دیتا ہے۔ اس لیے ایک ہی سچویشن میں دو لوگ بالکل الگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اگر رپلائی نہیں دیا تو یار وہ بندہ بزی ہوگا، دوسرا کہتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے ناراض ہے، اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ڈیفرنس ایونٹ میں نہیں، اندر دماغ میں چلنے والی سوچیں، دماغ میں چلنے والی سٹوری ہوتی ہے۔ لیکن یہ سٹوریز بنتی کیسے ہیں؟ کچھ لوگوں کو تنقید، صرف کرٹیسزم برا نہیں لگتا، بلکہ انہیں کرٹیسزم ریجیکشن لگتا ہے، یعنی کہ اگلے بندے نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ اسے سائیکالوجی میں خاص ٹرم کے طور پہ جانا جاتا ہے، جسے آپ غور سے سننا، ریجیکشن سینسیٹیوٹی۔ ریجیکشن سینسیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ دو الگ الگ بندے ہیں، دونوں کو ایک
तीसरे बंदे ने कहा कि नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है। एक बंदा उसकी परवाह नहीं करेगा, वो आगे अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करेगा, लेकिन दूसरा बंदा जिसमें रिजेक्शन सेंसिटिविटी ज़्यादा है वो बार बार उदास होगा कि मैं ही गलत हूँ, ये क्या हो गया, और उस पर दिनों तक वो ओवर थिंकिंग करता रहेगा। वैसे रिजेक्शन सेंसिटिविटी किन लोगों में ज़्यादा होती है? ये अक्सर उन लोगों में ज़्यादा होती है जिन्होंने ज़िंदगी में बार बार ये बातें सुनी हो, उनका हर वक्त कंपैरिजन किया हो कि ये ठीक है, तुमसे ज़्यादा बेहतर है, बचपन में ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको दिखाया गया हो, सिर्फ अचीवमेंट्स पर, कामयाबी पे उनको उनके बड़े अप्रिशिएट करें, उसके अलावा बिल्कुल ही अप्रिशिएट ना करें। उन्होंने बचपन में बुलिंग देखी हो, किसी अपने ने बहुत करीबी ने धोखा दिया हो, या इमोशनली उनको जज्बाती तौर पर निगलेक्ट किया गया हो, या वो जब जवान होते हैं और बॉस सिर्फ मिस्टेक करने का कहता है और दिमाग ये कहता है बार बार कि तुम इनफ नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। ऐसे लोगों के पार्टनर बिज़ी होते हैं, दिमाग कहता है कि यार वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, शायद वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। यानी कि आज की सिचुएशन पूरे इमोशनल, पूरे दिमागी ज़ख़म जो पुराने हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। लेकिन एक यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि क्या सेंसिटिव होना, जिसकी रिजेक्शन सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, क्या ये प्रॉब्लम है? देखिए, सेंसिटिव लोग अक्सर बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, अच्छे एक्टिव लिसनर्स होते हैं, एम्पैथी ज़्यादा उनके अंदर होती है, दूसरों का दर्द समझ सकते हैं, दूसरे के इमोशंस जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन ये वीकनेस नहीं है, ये गिफ्ट हो सकता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हर जज्बा, जब हर इमोशन सच्चाई बन जाए, फैक्ट बन जाए। याद रखिए कि इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, बल्कि मतलब ये है कि जो आप जज्बाती तौर पे फील कर रहे हो वही आपके डिसीजन कंट्रोल करे। डिसीजन कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपके जज्बातों को आपके डिसीजन नहीं कंट्रोल करने चाहिए। और इसीलिए जज्बाती बाउंड्री, जज्बाती हदूद, इमोशनल बाउंड्री ज़रूरी हैं। हर शख्स का मूड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मतलब एक बंदा नाराज़ है, गुस्से में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने दिल पे लो। हर डिसअपॉइंटमेंट अगले बंदे की आपकी गलती नहीं है। हर बंदा जो आपसे डिसएग्री करता है, आपको रिजेक्शन नहीं फील होना चाहिए। हर तनकीद बेइज्जती नहीं होती, और नो कहना, कभी किसी को नो कहना, ये सेल्फिश नहीं होता। तो इन बातों को याद रखिए। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपकी रिजेक्शन सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इसके लिए आगे मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि आप अपनी रिजेक्शन सेंसिटिविटी को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, ये एक सिंपल टेक्निक है, साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, इसे हम पॉज मेथड कहते हैं। पॉज, और अभी मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। पॉज के पी से मतलब पॉज ही है, यानी कि जब भी कोई आपको तनकीद आप पे हो, कोई आपको रिप्लाई नहीं करे तो फ़ौरन रिएक्शन मत करो, और रिप्लाई भी नहीं और अपने आप को डिफेंड भी नहीं, बस पॉज हो जाओ और कहो कि कुछ भी नहीं है। फिर ए से बनता है आस्क, अपने आप से पूछो कि असल में हुआ क्या है और मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ। मतलब कि अगर अगले ने रिप्लाई नहीं किया तो ठीक है, वो बिज़ी हो सकता है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करता। यू से बनता है अंडरस्टैंड के, यानी कि ये बात मुझे आज जो हर्ट करी है, ये आज की बात है या किसी पुराने तजुर्बे के साथ, इवेंट के साथ लिंक्ड है और वो एक्टिवेट हो रहा है। इसी तरह एस से बनता है सेपरेट, अलग करें। दूसरों का बिहेवियर, दूसरों के कहने को अपनी इज़्ज़त नफ्स से अलग करें। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और अपने आप को बताइए कि मैं अलग हूँ। इसी तरह ई से बनता है एक्सप्रेस, अगर ज़रूरत हो और एक बंदा आपको रिप्लाई ना करो तो कामली बताएं, इमोशनली गुस्से में मत एक्सप्लोड हो, कामली बताएं कि यार आपका मैसेज नहीं आया, मैं वेट करता रहा, क्या खैरियत है। याद रखिए, जो पॉज टेक्निक है आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाती है। रिएक्शन से रिस्पॉन्स में अपनी बड़ी वीडियोस में इसकी बातें कर चुका हूँ। लेकिन जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, तो क्या क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना चाहिए? देखें, हर क्रिटिसिज्म, हर तनकीद एक जैसा नहीं होता। मैं इसे तकरीबन 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगा कि जो भी आप पे तनकीद करता है उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगा। पहली जो कैटेगरी है यूज़फुल तनकीद, यूज़फुल क्रिटिसिज्म, यानी कि अगर किसी ने मुझ पर तनकीद किया तो इसमें कोई ना कोई मेरे लिए लर्निंग होगी, इसे एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा इमोशनल क्रिटिसिज्म, जब कोई इमोशनली आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो इंसान अपसेट होता है और बात गलत तरीके से करता है, तो आप उसके मैसेज को समझिए, टोन को नहीं। यानी कि एक बंदा जिसका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है या कोई बहुत मुसीबत में है और आप उसके पास जाएं कि और भाई क्या हाल चाल है, वो आपको गुस्से में कहे कि यार हट, बस जाओ, मुझे तंग मत करो,
तो आप उस मैसेज को समझिए कि यार ये बंदा खुद क्राइसिस में है, अभी ये टाइम उसे बात करने का ठीक नहीं है। और तीसरे नंबर पे आती है मैनिपुलेटिव क्रिटिसिज्म, यानी कि इसका मकसद इम्प्रूव करना नहीं, अपने आप को कंट्रोल करता है। कुछ लोग होते हैं वो आप पे ऐसा तनकीद करता है जिसे हम ताना तंज कहते हैं, कि आपको वो इमोशनली चाहते हैं कि आपको गुस्सा आए, आप उस पर रिएक्ट करें। याद रखिए कि जब भी कोई आप पे तनकीद करे तो मैनिपुलेटिव क्रिटिसिज्म को अलहदा कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगले बंदे ने हम पे तंज किए, मैनिपुलेटिव क्रिटिसिज्म किया है। अगर किसी ने किए भी तो अपने आप को कंट्रोल करना होता है और उसे अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त मत बनाइए। याद रखिए, हर तनकीद को एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी नहीं, और हर तनकीद को रिजेक्ट करना भी कॉन्फिडेंस नहीं। ये अक्ल है, ये विजडम है कि आप पहचान सके कि किस बात पे मैंने लर्न करना है, सीखना है, किस बात पे अगले बंदे को इग्नोर करना है और किस बात पे अपनी इमोशंस को इग्नोर करना है मैनिपुलेटिव क्रिटिसिज्म तनकीद पे। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग, वैसे आपको ये भी मैं बताता हूँ, जो इमोशनली स्ट्रांग लोग होते हैं वो रोज़ाना क्या करते हैं। देखिए, जो इमोशनली जज्बाती तौर पे स्ट्रांग लोग होते हैं, साइकोलॉजिकली रेजिलिएंट लोग होते हैं, वो कोई पत्थर दिल नहीं होते। हाँ, लेकिन याद रखिए कि वो एक आदत डेवलप कर लेते हैं कि जैसे ही कोई मीटिंग ख़त्म, किसी ने मीटिंग में उन्हें बुरा भला कहा तो वो बात ख़त्म, वो उस कन्वर्सेशन को दिमाग में 40 दफ़ा रिप्ले नहीं करते, रिपीट नहीं करते, उसे दिमाग से निकालते हैं। अगर कोई मुलाकात, कोई इंटरेक्शन हर्ट करे तो सिर्फ 10 मिनट में उसे प्रोसेस करते हैं और ख़ुद से पूछते हैं कि यार ये क्या हुआ था, अच्छा ठीक है, मैंने क्या सीखा, क्या मुझे इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, अगर लूँ भी तो एक्शन ऐसे हो कि जिससे मेरी इज़्ज़त नफ्स ख़राब ना हो और लोग भी मुझे बुरा भला ना कहें, और अगर नहीं तो बस फिर फ़ाइल बंद करें। अगर एक्शन नहीं लेना तो फ़ाइल बंद करें और ज़िंदगी आगे चलती है। ये लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स लोगों के ओपिनियंस पर नहीं, अपनी ख़ुद की वैल्यूज़ पे बनाते हैं। तो लिहाजा आपको पत्थर दिल तो नहीं बनना, आपको सिर्फ इतना सीखना है कि दूसरों की हर टोन, हर ओपिनियन, हर खामोशी, हर रिएक्शन आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करती। जिस दिन आपने ये बात समझ ली, उस दिन न सिर्फ आपका दिल मजबूत होगा बल्कि दिमाग भी सुकून में चला जाएगा और आप साइकोलॉजिकली रेजिलिएंट इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये वाली वीडियो? अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो ये वाली वीडियो देखना, कि जिसमें मैंने कहा कि हर छोटी बात पे घबराहट होती है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियो से आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊँ, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।